So now I request our next faculty, CEO of iHub. iHub is Incubation Center of Government of Gujarat. None other than Hiranmay Mahanta sir. Please give a big round of applause to sir. Sir is a pioneer in developing ecosystem for the startup. And if you need to start your business, your venture, then definitely he is the one person who should be contacted. There is one more person here amongst you all, Chirag Bhai. Chirag Bhai is also working at iHub, and you can take benefit of him. Sir has recently in our chit chat said me that he needs more chartered accountants. So if you want to work in startup ecosystem, venture capital, or investment banking, then definitely you should go and meet him. Sir is so much humble that he has also offered that he can have one course so far as the startup and investment ecosystem is concerned. He has given permission to hold one full day seminar at iHub, KCG campus. So, you can all have view on startup ecosystems as well. With these words, we again welcome you, sir. And now I request CA Dhaval Limbani to give introduction of our learned faculty, Hiranmaya Mahanta, sir. Thank you very much. Thank you, Bisan sir. Our today's faculty is Mr. Hiranmaya Mahanta, sir. Sir act as a CEO of Gujarat Student Startup and Innovation Hub, iHub. iHub is a catalyst in creating a stronger startup ecosystem across the state with its cohesive approach and its in-cultural and entrepreneurial spirit in the youth across 104 universities. As the CEO, he plays a vital role in driving the vision and strategic initiatives of the organization. His passion lies in fostering the inclusive innovations ecosystem, energizing youth, academia, industry, and other stakeholders to build the sustainable, innovation-driven enterprise. He actively contributed in the developing national innovation startup policy through the Ministry of Education and Government of India. He is involved in AICTE, a startup policy implementation committee, and contributes in the making of national strategies to take the innovation and the student startup movements across 10,000 plus colleges affiliated with AICTEs across all states. He is also member of the Global Sharper community and initiatives of the World Economic Forum. Sir is very enthusiastic. I also motivated by his, and I'm continuously following him since last 4 years also. I also motivated by his energy and the growth orientation perspectives he has. So with his, this short introductions, I welcome you, sir, on this. I also request Bisan sir to give a memento. So, आप सब लोग की कठिन तपस्या के बाद आप लोग सीए बने होंगे ना? आई एम श्योर कितने बार आप लोगों को डर भी लगा होगा कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा. बट लेट मी टेल यू, ये जो हमको कहा जाता है ना मार्केट में, घर में, कि ये अंतिम परीक्षा है, इसके बाद तो मौजे ही मजे है, राइट? मैं आपको एक सत्यता बता देना चाहता हूँ, कुछ अंतिम नहीं होता है. यू विल बी आस्क्ड टू गिव अनदर फाइनल एग्जाम ऑलवेज. सो कंसिडर लाइफ इज ए बिगर एग्जाम. और ये सीए और उसके बाद भी आप लोग कुछ और भी करेंगे, ये सब उसकी हिस्सा है. सो जिसको लग रहा है ना कि मतलब ये सबसे कठिनाई था, हो गया, अब सब बढ़िया चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. टेक इट एज ए पार्ट ऑफ योर जर्नी सो दैट you will not get surprised if you get a bigger challenge than CA exam in life, okay? But एक चीज़ है कि CA की तैयारी, मैं CA नहीं हूँ by the way, ठीक है? CA की तैयारी शायद आप सबको एक ऐसी
चीज़ से रूबरू करवाया होगा जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, राइट? जिस चीज़ की कोई गारंटी ना हो कि कल क्या हो ना हो, हमको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करनी है। सो आई थिंक आपकी प्रोफेशन में, और मैं ICAI को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी प्रोफेशन आपको रेजिलिएंट बनाता है। रेजिलिएंट का मतलब समझते हो आप लोग? रेजिलिएंट का मतलब होता है कि मुसीबत से लड़ने की कला। ये तो आप सबको आपकी प्रोफेशन सिखाता है। बट आई वॉज टॉकिंग टू योर यंग फ्रेंड हु इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस इवेंट। आई वॉज आस्किंग हर कि आपकी एवरेज एज क्या होता है जब CA बनते हो? देन शी टोल्ड मी कितना, 22 साल, राइट? 22-23 साल। सो टेक्निकली स्पीकिंग, in 1/3 of your life you become a professional, right? Now ब्यूटी क्या है कि आप 1/3 में प्रोफेशनल तो बन जाते हो, बाकी 2/3 में क्या करना है वो डिसाइड करेगा कि आपने लाइफ में अचीव क्या किया, राइट? एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन कि अचीव क्या किया। अगर आप आज की तारीख में एक सिंपल एनालिसिस देखेंगे, आपकी पिताजी या माताजी अगर किसी ने जॉब किया हो, उनकी करियर में एक सिंपल थ्योरी हुआ करता था, 1 करियर 1 लाइफ। क्या था? 1 करियर 1 लाइफ। अगर किसी ने एक लाइफ में 2 या 3 करियर कर दिया तो लोगों को लगता था या तो मिसफिट है, राइट? कि या तो कुछ गड़बड़ होगा या लोचा होगा। बट जिनकी उम्र 22-23 साल आज है और जो आज CA बनने जा रहे हैं, अगर वो 1 करियर और 1 लाइफ कर लेंगे तो वो मिसफिट होंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप में से जितने भी लोग आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बैठे हैं, अगर आप में से कोई इंसान सौभाग्य या दुर्भाग्य की बसत से अगर 1 करियर 1 लाइफ 1 जॉब 1 कंपनी में रह गया तो आपसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं होगा। सो दिस इज the change that has happened to economy and country like India in last 20-25 years. ये दिमाग में आ गया भाई? अगर कोई आपको इंस्पायर करता है ना कि यही चीज़ है यार, आज से एग्जैक्टली 35 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे और फिर विल हैव अ डिफरेंट लाइफ, तो फिर यू आर मिसगाइडेड, राइट? इनफैक्ट जब हम लोग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, आपने सब तो सुना होगा ना स्टार्टअप्स वाला, कहीं कहीं शार्क टैंक देखते होगे या कुछ ना कुछ किसी ने बताया होगा आपको, राइट? आज की तारीख में अगर आप कोई आइडिया पे कोशिश करके अपने लिंक्डइन की बायो में लिखते हो ना कि मैंने ये चीज़ चालू किया और वो चला नहीं, मैं एक नॉट सो सक्सेसफुल या मॉडरेटली फेल्ड एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आपकी वैल्यू बढ़ता है मार्केट में। द सोसाइटल परसेप्शन जो है ना, समाज की जो प्रतिष्ठा है, आजकल कोशिश करके हारने वालों को गलत नज़र से नहीं देखता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, दुनिया की जो टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग अपने तीसरी या चौथी अटेम्प्ट में ही अपना सक्सेसफुल कंपनी बना पाए हैं। तीसरी या चौथी। अगर कोई आदमी तीसरी या चौथी अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ तो पहला और सेकंड में फेल हुआ होगा, तभी तीसरी चौथी में गया होगा ना। तो अगर आपको किसी को लगता है कि पहली, आपने तो CA में भी कुछ लोगों ने कोशिश करी होगी पहले सेकंड में, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो प्रोफेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वर्ल्ड से काफ़ी मिलता जुलता है। तो अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तीसरी और चौथी में सक्सेस हो रहा है तो पहला और सेकंड में हार हुई होगी, लेकिन पहले और सेकंड में हार होने वाले तो बहुत होंगे। आपकी जैसे भी कोशिश किए होंगे, 20-25 हज़ार लोगों ने कोशिश किए होंगे, राइट? नाउ हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज हु लेफ्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट्स एंड द अदर्स हु परसिस्टेड? ये जिंदगी की खेल की जीत की सबसे यूनिक डिफरेंशिएशन है। और मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की संस्था है iHub करके, आप लोग जाके गूगल करना बाद में। I स्टैंड्स फॉर इनोवेशंस। जो भी युवा गुजरात की ज़मीन पे कुछ भी नया करने की कोशिश करता है, कुछ भी नए आइडियाज़ बनाने की कोशिश करता है, कोई विचार को आगे लेने की कोशिश करता है, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट 3 तरीके से करते हैं, ठीक है? और मैं उसको 3 M's में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला M है विटामिन M। विटामिन M समझते हो क्या है? मनी। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी
डू इज जब भी हमारे पास कोई आइडिया लेके आता है हम उसको कहते हैं कि भाई आपको थोड़े से पैसे चाहिए शुरुआती दिनों में अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, मार्केट जाने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो वो हम आपको हेल्प करेंगे। तो हम आइडिया स्टेज पे 10 लाख रुपए की एक ग्रांट देते हैं। ग्रांट का मतलब समझते हो? वापस नहीं करनी होती है उसकी, ठीक है? लोन नहीं है, डेट नहीं है, इक्विटी नहीं है, तो हम उनको देते हैं और लगभग 500 लोगों को एक साल में देते हैं और कहते हैं कि आप अपने सपना को टेबल पे या डेस्क पे लेके आइए। आप अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप कुछ समाधान बनाना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और फिर उनमें से लगभग 30% लोग 6-8 महीने बाद हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि यार 10 लाख में तो नहीं होगा, दिल मांगे मोर, राइट? तो हम लगभग 1/3 ऑफ दो जनता जिसके पास हिम्मत होती है वापस आके सरकार को मांगने की, उसको हम 30 लाख और देते हैं। कितना? ये भी ग्रांट है। ग्रांट मतलब समझते हो? यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग एक्सेप्ट कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो दुआएं देना, राइट? सो एंड द ब्यूटी क्या है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ जेंडर इंक्लूजन इन सीए बैच। अगर आपकी टीम में कोई महिला को फाउंडर है तो हम 40 लाख देते हैं, ठीक है? सो दैट यू नो इट शुड नॉट बी ओनली अ बॉयज गेम, राइट? और अगर आप कोई ऐसे बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हो, ऐसे आइडिया पे काम कर रहे हो जिसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देश को या राज्य को है, तो 50 लाख तक देते हैं। समझ में आ गया? ये देने वाली बात कर रहा हूं। सो आइडियाज में 10 लाख तक देते हैं, फिर हम आपको 30 लाख तक देते हैं, फिर 40 लाख तक देते हैं अगर आपकी टीम में कोई बहन है। और अगर आपने कोई ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की अपने बिजनेस मॉडल में जिससे राज्य और देश को डायरेक्ट बेनिफिट हो, तो 50 लाख तक मिलता है। ये सब बाय द वे आप पूछोगे सरकार के पास कहाँ से आता है पैसा? आप लोग ही टैक्स पे करते हो हमको, राइट? ऑल ऑफ यू हु आर इन सीए, यू हेल्प गेटिंग टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, तो हम वापस कर देते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है, राइट? नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रोफेशन में, एंड दिस वाज व्हाट बिशन भाई एंड अदर्स टॉट मी, कि हाउ दिस सीए इकोसिस्टम इवॉल्व। टुडे इफ यू कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर समबडी, यू गेट अ बेटर पाई, राइट? अगर आप किसी की बचत करने में हेल्प करते हो तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है एज ए प्रोफेशनल। मैं कह रहा हूं कि इसको आप क्या उल्टा सोच सकते हो? क्या उल्टा क्या होगा? नाउ यू आर पेड फॉर सेविंग मनी, बट व्हाट इफ यू विल बी पेड फॉर क्रिएटिंग मनी? समझ में आ रहा है? आज आप किसी की बचत करने के लिए आपको इंसेंटिव मिलता है, क्या आपकी प्रोफेशन वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम कर सकता है क्या? एंड आई विल टेल यू हाउ। हम लोगों ने यहाँ पे, मेरे 2-3 साथी हैं, चिराग, वो भी सीए हुआ है इस बार, तो इस साल हम लोगों ने 212 स्टार्टअप्स को, जिनका एवरेज एज 25-26, मतलब आपका 22-23 है, आपसे 2-3 साल आगे, 212 स्टार्टअप्स को iHub से हम लोगों ने सपोर्ट किया। ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा, within 2 years of their operations, their cumulative valuation today in the market is 4,500 crores. कितना? 4,500 crores. अब ये कौन बच्चे हैं जो 2-2.5 साल पहले आपकी जैसे ऐसे ही किसी ना किसी प्रोफेशन की ओरिएंटेशन पाइपलाइन में थे? तो मैं ये सोच रहा था कि द बॉय एंड गर्ल्स हु यूज्ड टू थिंक यार मेरा तो शायद लाइफ लॉन्ग का इनकम 50 करोड़ का होगा, that fellow is able to create a value of a company of 250 crores per year only with the mindset of not managing resources but creating resources. Let me repeat it again. Not by consuming or managing resources but by creating resources. मुझे याद है एक फाउंडर जो है आया था 3 साल पहले और उसने कहा कि सर मेरे को 10 लाख भी नहीं चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए आप दिला दो, मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। And this guy today, after 3 years, has built a 250 crore company, just passed out from LD Engineering College 2 years before, नबरंगपुरा में, right? So when I was talking to him few days before, कि पूछ रहा था कि भाई ये कैसा दुनिया है, ये माइंडसेट कैसे आता है आप लोग के बीच में? पहले तो आपके पेरेंट्स को पूछना, कोई कॉलेज से निकलने के 2 साल बाद कोई सोचता था कि मैं 100 करोड़ का कंपनी बनाऊंगा? शायद वो माइंडसेट इसलिए नहीं था क्योंकि पीयर ग्रुप में वो कन्वर्सेशन नहीं होती थी।
आज से 20 साल पहले टीवी का मेन सीरियल तो सास बहू ही होता होगा शायद, राइट? आज आप लोग शार्क टैंक्स देखते हो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आई थिंक इकोनॉमी में ये भी प्ले हुआ है कि हमारे पड़ोसी क्या सोच रहा है और पड़ोसी किस चीज़ से उसको खुजली हो रहा है, राइट? इफ योर नेबर इज गेटिंग ईच्ड बाय फैक्टर एक्स, यू ट्राई टू डू फैक्टर एक्स। बहुत सिंपल है। मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आता हूँ, हमने बीच में एक सर्वे किया था और बच्चों को पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा डिसिसिव आदमी कौन है आपकी करियर चूज करने के लिए, तो कहता है पड़ोसी। क्योंकि कोई अपने डायरेक्शन में नहीं सोचता है कि क्या होगा, अपने पेरेंट्स की भी नहीं सोचता है, लेकिन अगर मामा चाचा का भतीजा का कुछ बच्चा कुछ कर रहा है, आप में से बहुत सारे सीए ऐसे ही आए होंगे, राइट? आसपास दोस्तों में, खानदान में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई होगा तो लगा होगा कि हमको ही बन जाना चाहिए। सो ये जो हार्ड मेंटालिटी है ना, ये थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। आई एम श्योर आज 22-23 में आप सीए बन रहे हैं और लगभग मान के चलिए आज से 30 साल बाद जब आप ग्रोन प्रोफेशनल हो गए होंगे, तो इसी रूम में बैठे हुए लोग, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर होंगे, कुछ लोग वेंचर फंड मैनेज कर रहे होंगे, कुछ लोग ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में होंगे, कुछ लोग अपने कंसल्टिंग में होंगे, कुछ लोग खुद एंटरप्रेन्योर होंगे, बट ये चॉइसेस सब आपके हाथ में। सो बिशन भाई आस्क्ड मी टू टॉक टू यू कि ये चॉइसेस क्या क्या हैं जो आप सब की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। और लेट मी टेल यू, अगर मैं आपकी अगले 30 साल की करियर ग्राफ बताता हूँ, जो लोग रिस्क लेटर साइड में लेते हैं, मतलब अगर मैं 10 साल का 3 दशंधि का आपको बताऊं कि अगले 30 साल में जो लोग सेकेंड और थर्ड डिकेड्स में मेहनत करते हैं और जो रिस्क लेते हैं वो मॉडरेटली सक्सेसफुल होते हैं। जो पहले 10 साल में रिस्क लेते हैं वो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज योर एपेटाइट टू टेक रिस्क विल ऑल्सो बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप लोग भी तो ग्राफ खींचते होगे ना। योर एपेटाइट टू टेक रिस्क एंड रिटालिएट रिस्क विल ऑल्सो गो फॉर अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फैक्टर्स। तो अगर आप में से किसी को डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है बॉस, आई मीन सम ऑफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट वर्सन ऑफ अमन गुप्ताज, सम ऑफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट वर्सन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मेक माई ट्रिप, ऑल ऑफ यू आर सीएज, राइट? वो लोग के पास भी ऑप्शन था बिग 4 में जाके काम करने के लिए या किसी में काम करने के लिए, बट दैट लिटिल ऑप्शन जो है वो अगले 10 साल में ही आप ट्रांजिशन कर पाओगे, बिकॉज उसके बाद आपकी किड्स, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी पड़ोसी, right? A lot of these factors will decide who you are, what you want to be. And that is the reason I am trying to seduce you intellectually, that if you have little hunger to do something different, आज से अगले 10 साल गिन लो, 23 में हो तब 33 के बाद मिलेंगे फिर से यहाँ पे, तो तब तक जो डेविएशन होगा, अच्छा बहुत सारे लोग को लगेगा, बहुत सारे दोस्तों को लगेगा यार ये तो अलग दुनिया में जा रहा है, ये तो ये करता ही नहीं है। बट लेट मी टेल यू, वी एज ए नेशन आर ऑल्सो थिंकिंग वेरी डिफरेंट। आप में से मैं आपको एक ये जो कह रहा हूँ कि एक माइंडसेट बदल रहा है युवाओं के बीच में, मिलेनियल के बीच में, ये माइंडसेट सिर्फ आप लोग की नहीं बदल रहा है, माइंडसेट सरकार की भी बदल रही है और माइंडसेट पूरी कंट्री का भी बदल रहा है। आई विल टेल यू हाउ। शायद ही कोई देश भारत जैसा होगा जो डायरेक्टली बिना फोन से स्मार्टफोन्स पे आ गया। क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो? आप में से बहुत सारे घर में सीधा मोबाइल आया होगा, लैंडलाइन तो आई नहीं होगी, राइट? सिमिलरली बहुत सारे घर में सीधी लैपटॉप आया होगा देन कमिंग इन मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। नाउ दिस इज, इंडिया इज नोन फॉर नॉट लीफ फ्रॉगिंग, वी आर नोन फॉर पोल वोल्टिंग। पोल वोल्ट समझते हो? खंबा लेके जंप करने वाले लोग हैं हम, राइट? तो लीनियर ग्रोथ का इक्वेशन हमारे इकोनॉमी में बहुत फिट नहीं होता, हम एक्सपोनेंशियल जंप वाले होते हैं। तो आप में से अगर कुछ लोग सोच रहा है कि भाई मैं लिनियरिटी में चला जाऊंगा लाइफ में, तो यार कहीं ना कहीं तुम या तो सही आदमी गलत देश में हो या तो गलत आदमी सही देश में हो। यू नीड टू फिगर आउट व्हाट मिस्टेक यू आर, राइट? सो एंड दिस इज हाउ आई हैव बीन आस्क्ड टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट फिनटेक एंड स्टार्टअप्स। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक ऐसी रिवोल्यूशन है जो अगले 10 साल में आप बिलीव नहीं करेंगे हाउ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री विल वर्क। Probably I mean, I don't know, your parents might have 5 or 6 ATM cards. I don't know how many you have, right? And I'm sure with the evolution of distributed banking, neo banking, fintech ecosystem, अगर आप अपने बच्चों को बोलोगे ना कि हमारे पास एक ATM भी हुआ करता था, हम चालान भी भरते थे, लोग आपको पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे ऐसा कभी होता है भाई याद चीज़ें, राइट?
So the technology is changing the financial world in a very, very different way. And I will tell you, today, the cloud and internet architecture knows you more better than you know themselves. That much of data being captured. And all this data, when that will be embedded into financial technology layers, you will experience a new world of financial services, जिसको manage करने के लिए आप लोग जा रहे हैं. It might happen. अच्छा, by the way, all the knowledge that is being fed to any profession in this world get a 20-year life cycle to get obsolete. मतलब जो भी knowledge आप consume कर रहे हो 20 साल में obsolete हो जाएगा. So अगर आपकी प्रोफेशन या आपकी इंडस्ट्री 20 साल से ज़्यादा लॉन्जेविटी का है तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर तो बनना पड़ेगा, उसका बिना कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास. एंड जो लोग सीनियर सीएज होंगे आपकी इंडस्ट्री में 20-25 साल पहले, बिशन भाई जैसे, उनसे पूछना कितना चैलेंजिंग होती है टू डील विथ न्यू टेक्नोलॉजी एरा इकोसिस्टम्स. एंड आई विल टेल यू, द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज, सपोज द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज गोइंग with a 10 kilometer per second speed, the fintech industry is growing at 100 kilometer per second speed. Why? There are reasons. Traditional banking, traditional financials, traditional wealth management के लिए there are a lot of laws and regulatory. RBI की है, SEBI की है, banking associations की है, 50 regulatory चीज़ें हैं जो comply करने के बाद चीज़ें होती है. But beauty of technology क्या पता है? Technology as a solution come fast and law follows it. So the industry of fintech will fast get implemented, you will be the consumer, and then the legal frameworks will come. Typically अगर आप लोग कुछ लोग सरकार की पॉलिसी फॉलो कर रहे होगे तो there is something called data security law coming, right? Now government is thinking about how to create data policy कि आपने WhatsApp में 5 लोगों को कुछ भी हाई हेलो LOL भेज दिया, उस डाटा का असली मालिक कौन है, उस डाटा का मोनेटाइजेशन कौन करेगा, उस डाटा की सिक्योरिटी क्या होगी, ये सब पॉलिसी की बात कब हो रही है? 2024 में. और आप लोगों ने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिंडर कब से चालू कर दिया है? 7-8 साल पहले, राइट? सो ऑल सॉल्यूशन दैट विल एंटर टू द मार्केट विल कम टू रेगुलेशन आफ्टर a decade. That means if you are only managing law or only managing financial structures, that means you are by default 10 years before. So अगर आप 10 साल पहले होंगे तो of course you will be one among those millions on the desk, right? You will be not one out of those millions. So I will tell you how. I was talking to Bishan Bhai. He told me that there are 20,000 CAs in Gujarat आज की तारीख में जीवित हैं, ठीक है? And these 20,000 CAs almost know which penny of whose is lying where. यही है ना? अगर आप लोग सब खड़े होके कसम खा लो कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई पैसा इधर से उधर नहीं होगा तो शायद एवरीथिंग विल बी स्टैंड स्टिल, राइट? ओनली दिस 20,000 पीपल कैन डू दैट. तो ये 20,000 में से 80% ऑफ देम आर बिजी इन ऑप्टिमाइजिंग वेल्थ. ऑप्टिमाइजिंग वेल्थ समझते हो कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ दुनिया में है उसको प्लस माइनस 12% IRR, 15% IRR की इकोसिस्टम में उसको मेंटेन करके रखना है. And only 2% are involved in hacking wealth. Hacking wealth मतलब growing it beyond a linear graph. So I will give you a few numbers. You will be surprised to know. अमेरिका में आपकी इक्विवेलेंट जो प्रोफेशन है, अच्छा आपको पता है अमेरिका का पॉपुलेशन हमारा 1/5 है, क्योंकि नंबर में तो हमें कोई बीट नहीं कर सकता, राइट? सो वो लोग हमारा 1/5 हैं और 1/5 में उनके पास वेल्थ एडवाइजरी में आपकी प्रोफेशन के बिरादरी के लोग हैं लगभग 1 मिलियन. कितना? 1 मिलियन. आपकी जैसे 1 मिलियन लोग हैं इंडिया में. लगभग सीए सब मिला के आई वाज बीइंग टोल्ड इट इज अराउंड 6 लाख और समथिंग, राइट? तो 1/5 पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं 1 मिलियन. बट वो सिर्फ वो स्क्यू ग्राफ से मैं वरीड नहीं हूँ. इंटरेस्टिंग चीज ये है, इन 1 मिलियन में से लगभग 0.5 मिलियन जो हैं वो डायरेक्टली वेल्थ हैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं. वेल्थ हैकिंग मतलब वेल्थ को ग्रो करने में इन्वॉल्व होते हैं. That is into technology asset class, venture building, venture finance, private equity, है ना, wealth multiplication में काम करते हैं. और नियरली 0.5 मिलियन लोग जो हैं आपकी प्रोफेशंस की वो वेल्थ को ऑप्टिमाइज करने में काम करते हैं. तो ऑब्वियसली अगर
लीनियर ग्राफ में 50% लोग हैं और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में 50% लोग हैं, तो वेल्थ तो क्रिएट होगा। हमारा तो यहाँ पे 0.1% भी नहीं होंगे, राइट, और 0.2% भी नहीं होंगे। सो वन लेसन दैट प्रॉब्ली इफ यू वांट मी टू गिव यू इज, कैन यू बी इन द अदर साइड ऑफ द ग्राफ? Can you mold your career in areas where you are in that 0.2 and 0.3% of the game? अगर आप अपने ट्रेजेक्टरी या अपने प्रोफेशन उसी हिसाब से बना सकते हो, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you will believe it or not, most of the financial transaction, wealth management, insurance, lead platforms, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आज की तारीख में, most of these will be obsolete in next 10 years. And आप लोग पता नहीं if you Google it or not, you go and little bit Google about something called theory of obsolescence, right? Unfortunately, हमारी जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग बहुत लंबी रहती है और मार्केट डिमांड श्रिंक करती है। मैं आपको इसका एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। आज की तारीख में ज़्यादातर देश में जो फाइटर प्लेन्स हम यूज करते हैं ना, ज़्यादातर कंट्री में जो हम फाइटर प्लेन्स आज यूज करते हैं, उसका डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन कितने साल पुराना होगा? गेस मार सकता है कोई? एनी गेस? सॉरी, आवाज नहीं आया। somebody can teleprompt. 25, 30, 40s, इट इज नियर बाय। आज की तारीख में जो मिग फाइटर प्लेन्स हम यूज करते हैं वो 60s में बने थे। कब? 60s की डिजाइन, 70s की प्रोडक्शन, और यूज कब हो रही है? 2024। अच्छा आप ये बताओ, 60s में मोबाइल फोन में प्रोसेसर कितना होगा भाई? किलोबाइट। आज तो आप टेराबाइट पे पहुंच गए हो। मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं मैं आपको। इमेजिन आज जितना आपकी इस मोबाइल फोन की एक एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए। मैं सिंपल अगर कहता हूं, आपकी मोबाइल फोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन तो होगा, जितना आपकी मोबाइल फोन की व्हाट्सएप एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए, उतने ही कंप्यूटेशनल कैपेसिटी में फाइटर जेट्स चलते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो मिग का फ्लाइट ऑपरेशन है, उसकी जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी था, वो आपकी मोबाइल फोन की एक सिंगल एप्लीकेशन की कंप्यूटेशनल कैपेसिटी के बराबर है। इसका मतलब हम हमारे मोबाइल फोन में कम से कम 100 मिसाइल फायर करने की कैपेसिटी रखते हैं, है कि नहीं भाई? लेकिन उसकी जगह पे करते क्या है? LOL एंड 2-3 चीज। That is exactly what I'm talking about, obsolescence. So most of the tools that are available for you to manage your profession today are million times powerful than what you are assuming it. चाहे फिनटेक हो, चाहे क्लाउड हो, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस हो, ये जितने भी टेक्नोलॉजी आपकी प्रोफेशन को एनेबल करने जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, ये पूरा का पूरा आपकी कैपेसिटी से, आपकी पोटेंशियल से मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। बट वेदर you will use it for million times or 100 times, that is left up to you, right? And I must thank ICAI to invite in your early days of your career and tell you ki which are the direction you should mold your life. And I think this is very important. And some of you, अगर आप में से कुछ लोग उस रिस्क फ्री जोन में नहीं जाना चाहते हो और रिस्क प्रोन जोन में जाना चाहते हो, then I invite you all to iHub and Government of Gujarat support system, and we will make sure that even if you crash land, you will get a safe path. And as I told in the beginning, the ability to retrieve yourself from that crash landing in your career by taking risk as an entrepreneur or supporting entrepreneur. I'm not saying कि हर कोई entrepreneur बन जाए, but in your profession, you could be wealth management advisor, you could be transaction advisor, you could be part of a venture fund, you could be part of a limited liability enterprise which is helping startups to evaluate their portfolios. ये सब कुछ कर सकते हो। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि everybody has to be Arjun. There are 5 Pandavas, right? As per your capacity, as per your capabilities, you choose your profession. But what I'm saying is, take little bit of doping, and be little more risk taker. और रिस्क टेकर बनने का सबसे सहज तरीका है थोड़ा थोड़ा नियम हर रोज तोड़ना चालू करो।
घर में, प्रोफेशन में, बाहर में, ICI के अंदर. So if you start doping yourself, little doping, that violate your norms, and let me tell you, दुनिया उन्हीं को याद रखता है जो नियम बनाते हैं, ना कि नियम मानते हैं, right? And if you little dope yourself to deviate, to go ahead, create new ideas, create new things. Of course, पहले दिन आंख बंद करके हाईवे मत आ जाना, that is too much of violation. But start doping yourself with the ability to think new. Don't get happy when padosi clap for you, okay? If large people are clapping for you, that means you are in the janta, भीड़ में हो, और वो भीड़ खतरनाक है. So try to be little unique, little different, do different things, do them differently, and try to make a difference in life. I think that will justify for becoming a CA today. Thank you so much. As we conclude this session, our deepest appreciation and gratefulness to our distinguished speaker, Shri Hiranmay Mahanta Sir. Your expertise and engaging delivery has given us valuable perspectives that will undoubtedly influence our approach going forward. Once again, on behalf of everybody here, thank you so much, sir.